وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ رواں سال پولیو کے 60 کیسز سامنے آنا انتہائی تشویشناک اور حکومت کے لیے چیلنج ہے۔ حکومت پولیو کے مرض کو ملک کی سرحدوں سے نکال باہر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں بچوں کو ویکسین پلا کر سال کی آخری انسداد پولیو مہم کا افتتاح کرنے کے بعد وزیر اعظم نے والدین سے اپیل کی کہ والدین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ واقعات بڑھ گئے اور آج تقریباً 60 کیسز پاکستان بھر میں سامنے آئے ہیں، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور میٹر آف گریٹ کنسرن۔ لیکن حکومت پاکستان کی اور صوبائی حکومتوں کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہماری بھرپور کوشش ہے، کمٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم اس بار اس پولیو کے مرض کو پاکستان کی سرحدوں سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال کر دم لیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کبھی سول نافرمانی اور کبھی مذاکرات کی بات کرتی ہے۔ جو ماحول پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے اس میں کوئی مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ سیالکوٹ میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع ہونے کی کوئی بات ان کے علم میں نہیں ہے۔ مذاکرات کے بارے میں جو بیانات آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے آ رہے ہیں، حکومت کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ جو جتنے بھی بیان آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا میں پی ایم ایل این کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا اور نہ کوئی کنفرمیشن آئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے اپروچ کیا ہے۔ وہ فی الحال آپس میں بیان بازی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی وہ بانی پی ٹی آئی جیل سے بیان دیتا ہے، امشیرگان جو ہیں وہ کہیں لاہور سے بیان دیتی ہیں، وہ بشرا بی بی کے پی سے بیان دیتی ہیں۔ اب باقی جو پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں، گور صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اور بھی لوگ ہیں، سارے مختلف بیان دے رہے ہیں۔ ان میں سے کسی میں جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں ہم آہنگی نہیں ہے کسی کے بیانات میں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری یہ شرطیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے غیر مشروط کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی سول نافرمانی کریں گے، ساتھ دھمکی دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس ماحول میں جو ماحول پی ٹی آئی نے کریٹ کیا ہوا ہے کوئی نتیجہ خیز قسم کے یا میننگ فل جو ہے مذاکرات کی ابتدا ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا معاملہ اب تک واضح نہیں ہے، جب واضح ہدایات آئیں گی تو پھر دیکھیں گے۔ پشاور میں پی ٹی آئی کے یوم شہداء جلسے سے قبل سی ایم ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ سول نافرمانی کی کال انہوں نے نہیں، بانی پی ٹی آئی نے دی ہے اور ان کے حکم پر اس کی روح کے مطابق عمل ہوگا۔ ہماری پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان، اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ تو ہم ویٹ کر رہے ہیں جب کلیئرٹی آ جائے گی کس طریقے سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے اور کیا لائعمل ہوگا، فیز وائز ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، کون سی چیزوں کے اوپر ہوگی۔ تو جب کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ کریں گے۔ پھر پہلے ہماری شرط ہے عمران خان کی رہائی، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ، اس کے بعد جو ترمیمیں کی ہیں انہوں نے غیر آئینی، یہ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، اپنے حق مانگ رہے ہیں۔ اگر نہیں ملے گا ہماری تحریک جاری ہے انشاءاللہ، پھر ہم بھی آگے پلان بنائیں گے۔ ہمارے سامنے 26 ہزار رینجر اور پولیس کو لگایا جاتا ہے اور وہ سٹن گرینیڈ بھی ہمیں مار رہے ہیں۔ آنسو گیس تو اب ایک گپ بن گئی ہے ہمارے لیے، آنسو گیس تو ہمارے لیے پرفیوم بن گیا ہے، ہوتا ہے نا پرفیوم باڈی اسپرے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہے۔ اب ہمیں جان سے بھی مارا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن ہمارے مزید لوگ ہمیں دیے نہیں جا رہے، کیونکہ میتیں ہمیں نہیں دی جا رہی ہیں اب تک۔ 12 لوگ ہمارے کنفرم ہیں اس وقت، ہمارے 68+ لوگ بلیٹ انجرڈ کنفرم ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں ہم لے کے آئے اور ہم نے علاج کیا ان کا۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو شاید خوف کے مارے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو شو بھی نہ کر رہے ہوں۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نے انارکلی سے شروع کیا لوگوں کا قتل عام، اور پورے پاکستان میں کرسی کے لیے قتل عام کروایا۔ اس کے بعد اگر پاکستان ٹوٹا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ انہوں نے ملک توڑ دیا، کرسی کے لیے۔ اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے کیا کیا ہے؟
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर जितनी बढ़ के मार लें इनकी हर कॉल नाकाम होगी। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि इनकी अगली कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ाइनल कॉल की तरह ये भी नाकाम होगी। अता तारड़ ने कहा कि इनकी कोई कॉल पुरअमन नहीं रही, कानून हाथ में लेंगे तो क्रैक डाउन होगा। बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया, तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। तो आपकी कोई कॉल पुरअमन नहीं थी, अब अगली कॉल का तो हम इंतज़ार करेंगे। आप अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और बढ़ के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमका कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सियासी तौर पे नाकाम हैं, आप इंतज़ामी तौर पे नाकाम हैं, आप सूबे के मामलात को संभालने में नाकाम हैं। जाली ब्रीफिंग दो मर्जी दें। अगर फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। तो इसलिए ये जेब नहीं देता है झूठ की, मुनाफकत की सियासत। झल मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में मक्सी ड्राइवर्स छा गए हैं। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में जाफर मक्सी पहले, अनीस मक्सी दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। इस बारे में मजीद जानेंगे झल मक्सी में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीकुर रहमान से। जी अतीक। जी, इब्तदाई तीनों पोजीशन अगर देखी जाए, प्रीपेड एक कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तीनों इब्तदाई तीन पोजीशन जो है वो मक्सी फैमिली के नाम रही। नादिर मक्सी के जो भतीजे हैं जाफर मक्सी, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। 170 किलोमीटर का ये फासला था और जो उन्होंने 1 घंटे 58 मिनट में जो है वो तय किया और 54 मिनट में तय किया और पहली पोजीशन हासिल की। इसके बाद इनके कजन हैं अनीस मक्सी, उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की और जो लेजेंडरी ड्राइवर्स हैं नादिर मक्सी, वो तीसरी पोजीशन हासिल की। उन्होंने ये 170 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 58 मिनट 3.64 सेकंड में जो है ये फासला तय किया। तो ये प्रीपेड ए कैटेगरी जो हर रैली की सबसे टॉप कैटेगरी कहलाती है, तो उसमें इब्तदाई तीनों फैमिली जो तीनों पोजीशन है वो मक्सी फैमिली के नाम रही है। और झल रैली हुई थी और उसके बाद ये झल मक्सी रैली हुई है, लेकिन इसका ट्रैक इंतहाई चैलेंजिंग था। और कल जब स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए तो वहां भी हमने देखा कि कहीं गाड़ियां जो हैं वो फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच सकी, कुछ गाड़ियां खराब हो गई। आज भी यही सूरत हाल हमें देखनी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का ट्रैक था वो बड़ा दुश्वार गुजार और मुश्किल था, ड्राइवर्स के लिए चैलेंजिंग था। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली की गाड़ी जो है वो खराब हुई, इसी तरह और टॉप के जो रेसर थे उनकी गाड़ी जो है वो खराब हो, फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच सके। लेकिन अभी प्रीपेड बी और सी कैटेगरी के रिजल्ट आना बाकी हैं। स्टॉक कैटेगरी के कल रिजल्ट आ गए थे, उनके कल इवेंट हुए थे। और जहाँ तक लेडीज कैटेगरी की हम बात करें प्रीपेड ए के अंदर, तो लेडीज कैटेगरी के अंदर जो है वो रिदा राजा ने पहली पोजीशन हासिल की थी। जी बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान तफसील देने के लिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई एक सूबे की हुकूमत मिलने की वजह से इस्लामाबाद पर 3 बार हमला आवर हो चुकी है। फैसलाबाद में खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बुशरा बीबी के आते हुए कहा कि पठान बहुत गैरतमंद होते हैं, पठान साथ नहीं छोड़ते, मगर डी चौक पहुँचने के बाद पठान तो खड़े रहे, मगर बुशरा बीबी और गंडापुर रफू चक्कर हो गए। पठान अब आप देख लें कि एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है तो 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुके हैं। और जब हमला आवर होने को इस मरतबा आ रहे थे तो रास्ते में बार बार लोगों को कह रहे थे कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। और बाद में हाल ये हुआ कि डी चौक पहुंच के वो पठान सारे गरीब खड़े थे और खुद जनाब वहाँ से रफू चक्कर हो गए, खुद भाग गए। अली बिन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी। लोगों ने और उसके बाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे कत्ले आम हुआ है, हमारे बंदों को यहाँ पे मारा गया। मैंने तो चीफ मिनिस्टर साहबा से भी और प्राइम मिनिस्टर साहबा से भी कहा कि इतनी जो है वो पाबंदी लगाने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं थी। हमें ये पहले से मालूम था कि पंजाब में लोग इस किस्म की अफरा तफरी अनारकी की सियासत को जो है वो पंजाब में लोग पसंद नहीं करते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल किए जाते हैं। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है और आइंदा भी नहीं होगी।
समझता हूँ डायलॉग इज़ द ओनली आंसर, क्योंकि तमाम महज़ब दुनिया में आखिरकार जो इश्यूज रिजॉल्व होते हैं वो डायलॉग के साथ होते हैं, और पॉलिटिशियंस को ब्रिजेस नहीं बनानी चाहिए, उनको वॉल्स नहीं बनानी चाहिए, उनको ब्रिजेस बनाने चाहिए। पीपल्स पार्टी पहले दिन से वो हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती, तो इस वक्त अब सेकंड फेज में कोई उसकी मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी शामिल है। उधर पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर बात चल रही है, जब हतमी बात होगी आपके सामने पेश कर देंगे। JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल पर सदारती एतराज़ात में फैटफ का जिक्र मौजूद है, जबकि वफाकी वज़ीर अता तारर कहते हैं कि सदारती एतराज़ात में फैटफ का जिक्र नहीं है। हाफिज़ हमदुल्ला ने सवाल किया कि बताया जाए दोनों हुकूमती शख्सियात में से गलत बयानी कौन कर रहा है, कौम और अवाम फैसला करे कि हुक्मरानों के कहने और करने में कितना तज़ाद है। हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि ऐवान सदर के मदारिस बिल पर एतराज़ात में फैटफ का जिक्र मौजूद है। अता तारर हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स ना दें। अता तारर उसी पार्लियामेंट के फैसले को नहीं मानते जिसने मदारिस बिल मंजूर किया। नून लीग ने पहले बिल को वोट दिया और फिर उससे इनहराफ किया। क्या वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरीके से किया जाता है? पंजाब हुकूमत ने सरकारी और निजी स्कूलों को सर्दी में यूनिफॉर्म पॉलिसी नरम करने की हिदायत जारी कर दी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकारी और निजी स्कूल शदीद सर्दी के पेश नज़र स्वेटर्स और जैकेट्स के मामले में यूनिफॉर्म पॉलिसी नरम करें। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बच्चे सर्दी से बचने के लिए जिस रंग का भी स्वेटर, जैकेट, मोज़े या टोपी पहन कर आ रहे हैं उन्हें आने की इजाज़त दी जाए। पंजाब इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है और बच्चों में नज़ला, खांसी, बुखार और नमूनिया की बीमारियाँ फैल रही हैं। एक्सपो सेंटर कराची में जारी बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आज चौथा रोज़ है। कुतुब मेले में बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े शरीक हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ 19वां कराची बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला आज अपने चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। और अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यहाँ पर दौरा किया इस मेले का और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये जो एक तासुर दिया जाता है कि रीडरशिप कम हो गई है, किताबों से इश्क कम हो गया, और कराची हर साल की तरह इस साल भी उसकी नफ़ी करता हुआ नज़र आ रहा है। 330 से ज़ायद स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर फैमिलीज़ के हमरा मौजूद है, मुख्तलिफ़ किताबें ले रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस पर किताबें मिल रही हैं और ये 5 रोज़ा कुतुब मेला कल तक जारी रहेगा। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबे पर काम के दौरान एक बार फिर 84 इंच कुतर पानी की पाइपलाइन से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। कई इलाकों में पानी की फराहमी एक बार फिर मुतासर हो गई है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मशीनरी तो मुतासरा जगह पर पहुंच गई है, लेकिन मुरम्मत का काम कल से शुरू किया जाएगा। तफसीलात कराची से किरण खान की रिपोर्ट में। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर BRT रेड लाइन मंसूबे पर काम के दौरान 28 नवंबर को 70% शहर को पानी फराहम करने वाली 84 इंच कतर की पाइपलाइन 2 मकामात से लीक हो गई थी, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर हो गई। दोनों लीकेजेस की मुरम्मत के बाद एक बार फिर 84 इंच कतर की लाइन तीसरे मुकाम से लीक हो गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों को पानी की फराहमी मुतासर हो गई है। इस टाइम जो है वो पूरे कराची में तकरीबन 70% पानी बंद कर दिया गया है, जिसमें कमाड़ी है और सदर टाउन है, जनार टाउन है, गुलशन टाउन है और ये लियारी तक, पूरा कमाड़ी से लेकर लियारी तक जो है ना इलाके मुतासर हैं, जिसके अंदर तकरीबन 21 पंप बंद किए गए हैं। शहरियों का कहना है कि पानी की अदम फराहमी के बायस न सिर्फ उनके मामूलाते ज़िंदगी मुतासर होते हैं, बल्कि उनकी जेब पर भी काफ़ी बोझ बढ़ जाता है। 9 दिन से पानी अभी नहीं आ रहा, ये मसला है, पाइप फट गया, कब बन जाएगा इसी से तरह। लोगों को परेशानी है पानी की, जिसमें कि हम लोग सब शरीक हैं। अब बड़ी फैमिलियाँ, उनको तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है ना। टैंकर 10,000 12,000 यहाँ मिल रहा है, छोटा छोटा टैंकर। गरीब का यहाँ पर रहना या ये वो बहुत मुश्किल हो। टैंकर भी मंगवा रहे हैं और ये बाज़ार से भी लेते हैं, वो फ़िल्टर वाली जो बोतलें बड़ी वो भी मंगवाते हैं, मगर पूरा थोड़ी होता है पानी हर चीज़ पानी से ही होती है। दूसरी जानिब वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक मुतासरा लाइन का मुरम्मती काम 72 घंटों तक जारी रहेगा और बुध की शाम तक पानी की फराहमी बहाल होने का इम्कान है। शहर को यौमिया टोटल 650 MGD पानी फराहम किया जाता है। मुरम्मती काम के बाद शहर को यौमिया 150 MGD पानी की कमी का सामना होगा।
साइफन 19 में 84 इंच कतर की 3 लाइनों में एक का मुरम्मती काम किया जाएगा। मुरम्मती काम के बाइस लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल रहेगी। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी और साथी रिपोर्टर सुलेमान सादत खान के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर की तरक्की के लिए दिन और रात एक होकर काम कर रहे हैं। शहर से चाइना कटिंग के निज़ाम को हम ख़त्म करना चाहते हैं। खालिदीना हॉल में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बच्चों को तहरीक खिलाफत को समझाने के लिए इस इमारत में लाना चाहिए। कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत ये होता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कारकर्दगी दिखाने के लिए। तो आज अगर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको बुलाया है तो अपनी सलमान की तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं बुलाया, आपको बुलाया इसलिए कि एक चीज़ जो कि माजी में चाइना कटिंग हो गई थी, इसी तारीख़ी इमारत में किस किस को क्या क्या करने की इजाज़त दी गई है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा। तो वो अपना काम करते रहें, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, हम अपने किरदार वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने काम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रहनुमा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि एमकेएम हुकूमत छोड़ रही है। कराची में गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत में रहते हुए हालात बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपने हुकूमत छोड़ने की बात करी है तो उससे हलचल मची हुई है। हुकूमत जब भी आपने छोड़ी है, मेरा ख्याल है बयान या जब भी एमकेएम ने हुकूमत छोड़ी है, या तो इलेक्शन हुए या हुकूमत तब्दील हुई है, तो क्या होने जा रहा है? मैं समझता हूँ आपकी एमक्यूएम को हालात तब्दील करने के लिए चाहिए, वो हुकूमत में रहते हुए हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। मामला ये, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि ये वजारतें कोई तोहफे में नहीं मिली हैं। ये हमने, हमारा जो मैंडेट वापस आया तो शहर का हक है। हमने ये कहा कि अगर वो काम जो हम काम करने नहीं आए हैं तो फिर उस पर रहना भी ज़रूरी नहीं है। और मेरे चले जाने का मकसद ये नहीं कि एमकेएम भी चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने बारे में कहा था, एमकेएम के बारे में नहीं कहा।